اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ایور لاسٹنگ فادر. ہم سب کھڑے ہوں گے. یسایہ نبی کی کتاب میں 9واں باب 6 آیت پڑھیں گے. ایوری باڈی پلیز اسٹینڈ اپ. آئزیہ چیپٹر 9 ورس 6. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. ہم دعا کریں گے. آسمانی باپ تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ راہ کے لیے روشنی جو دلوں کو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. آج تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اس پر غور کریں تو ہمیں نیا کرنا تر و تازہ کرنا تاکہ تیرا کلام جب بھی بولا گیا مردے جی اٹھے سوکھی ہڈیوں میں جان آئی لنگڑوں نے چلنا شروع کیا اندھوں نے دیکھا. آج تیرا کلام ہماری زندگی پر ضرب کرے یسوع مسیح کے نام سے آمین. پلیز تشریف رکھیں. جو مضمون ہے ہمارا ایور لاسٹنگ فادر. انگلش ورژن میں یہ 4 نام ہیں. پاکستانی بائبل میں ہم اس کو 5 کر لیتے ہیں. عجیب کو علیحدہ کر لیتے ہیں لیکن عجیب مشیر ونڈرفل کاؤنسلر ایک لفظ ہے. تو یہ 4 نام ہیں یسوع مسیح کے جس کے بارے آج دیکھیں گے. لیکن اس کا نام ابدیت کا باپ. بچہ ابھی پیدا ہونا ہے 700 سال بعد اور نام اس کا باپ رکھا جا رہا ہے ابدیت کا باپ. ابدیت کے جو معنی ہے وہ ہے ایٹرنل, اینڈ لیس, ابد سے, پہلے سے, نہ ختم ہونے والا. ابدیت کا باپ, ایور لاسٹنگ فادر. باپ اگر بچے کا نام ہے یہ کنفیوژن ہے اور بہت سی ڈینامینیشنز ان کے اوپر علیحدہ علیحدہ بلیو کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. ابدیت کے باپ میں ہم جس بھائی پکچر دکھائیں گے. یہ 3 چیزیں ہیں 3 in 1. گریک میں ہے لفظ ہائپوسٹیٹس جس کا مطلب ہے گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ. خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے consisting of 3 parts, the union in one God. So ایک خدا ہے 3 چیزوں کا مجموعہ. سورج کی تصویر دکھائیں. یہ جب سورج کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم سورج کہتے ہیں. اسی طرح جب خدا کہنا ہے تو خدا کو خدا کہتے ہیں. لیکن اس میں سے روشنی نکل رہی ہے جس کو ہم جیزس کہہ سکتے ہیں. اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے جس کو پاک روح کہہ سکتے ہیں. لیکن سب اس کو سورج ہی کہتے ہیں. اس لیے خدا ایک ہی ہے, 3 خدا نہیں ہے. خدا ایک ہی ہے جیسے سورج ایک ہے لیکن اس میں سے ہیٹ بھی نکلتی ہے, اس میں سے روشنی بھی نکلتی ہے. خدا ایک ہی ہے. اسی طرح یہ دوسری تصویر دیکھیں گے ہم جس میں یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. اگر آپ اوپر دیکھیں تو لکھا ہے فادر از ناٹ جیسس. غور سے دیکھیے گا. یہ اونلی جیسس والے بن گئے, فلانے بن گئے, فلانے بن گئے. دیکھیے گا فادر از ناٹ اے جیسس. جیسس از ناٹ ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ از ناٹ اے فادر. بٹ فادر از گاڈ, جیسس از گاڈ, ہولی اسپرٹ از گاڈ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ Father is not Jesus.
जब बच्चों को भी माएं दुआ सिखाती हैं, जीसस हमें दे, ये हमें दे, जीसस हमें दे, नहीं नहीं नहीं, जीसस के थ्रू बाप से मांगना है। इसीलिए यीशु मसीह जब धरती पे थे तो दुआ करते थे। अगर यीशु मसीह एज ए यहोवा बाप था, उसको दुआ करने की क्या जरूरत थी? वो किससे फिर दुआ कर रहा है? जस्मीन, सूरज जो है वो एक जगह पे है, उसमें से रोशनी और हीट निकलती है। इसी तरह ये ट्रिनिटी से कहते हैं, इसको समझना जरूरी है कि फादर इज नॉट जीसस एंड जीसस इज नॉट होली स्पिरिट, बट फादर इज गॉड, जीसस इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। इसलिए हम होली, ऐ पाक रूह, ऐ खुदा पाक रूह, हम खुदा जीसस को भी कह सकते हैं, हम खुदा होली स्पिरिट को भी कह सकते हैं, और जो खुदा है उसको भी कह सकते हैं। अगर इस कुलिये की समझ आ जाए तो फिर मैं और आप इजीली ये ट्रिनिटी जो है, तीन चीजों का मरकब, इसको समझ सकते हैं। बेसिकली सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सूरज है ना, अगर इसमें हरारत और रोशनी ना हो तो इटसेल्फ सूरज कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी वजह से ये मुकम्मल होता है, इसलिए देयर आर 3 persons in one, in essence, one in essence। एसेंस का मतलब होता है वजूद में। इनका वजूद एक है, सूरज एक है, उसी में से रोशनी, उसी में से हरारत, उसी में से यीशु मसीह, उसी में से पाक रूह निकलता है, लेकिन खुदा एक ही है। इसको ट्रिनिटी कहते हैं। अब कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां ये तीनों का मजमुआ हमें मिलता है। लूका पहला बाब 35 वर्ष में लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, क्या कहा? रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। रूह, रोशनी की बात की जाएगी, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तीनों चीजें इकट्ठी यहां पे कही गई है। खुदा एक है, लेकिन 3 चीजों का मजमुआ है। जब इसको हम इस तरह एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि जीसस क्या है, रूह क्या है, खुदा क्या है। मत्ती 3 बाब 16 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल फोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने, यहां पे भी 3 चीजों का इकट्ठा जिक्र होता है, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, खुदा की रूह को, और देखो आसमान से आवाज आई। अगर यीशु मसीह बपतिस्मा ले, आसमान से आवाज किसकी फिर आई है? अगर यीशु मसीह नीचे है, आसमान से कौन आवाज दे रहा है? तो ये खुदा है, यीशु मसीह, पाक रूह, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ऊपर गया और देखो आसमान से उनके लिए खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। रूह कबूतर की मानद आया है, आवाज ऊपर से आई है, और बेटा बपतिस्मा ले रहा है। तीनों का मजमुआ एक खुदा है। मत्ती 28-19 में लिखा है, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। कुछ लोग बपतिस्मा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपको बपतिस्मा देते हैं। रॉन्ग है, थियोलॉजी के मुताबिक रॉन्ग है। अगर आपने बपतिस्मा देना है, जो भी वाच कर रहे हैं, बाप और बेटे और पाक रूह, ये तीनों का मुकम्मल एक खुदा है। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। एक का काम फर्क है, एक का काम फर्क है, एक का काम फर्क है, लेकिन ये तीनों का मजमुआ इकट्ठा है। जब भी बपतिस्मा दिया जाए तो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से होना चाहिए। अगर कोई शख्स सिर्फ एक चीज को, एक इकनोम को यूज करता है
अकॉर्डिंग टू थियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द बाइबल रॉन्ग है। Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. दूसरा जो पॉइंट है, तो ये तीनों हवाले हमें ये बताते हैं कि ये तीनों खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। बाप को खुदा कह सकते हैं, पाक रूह को खुदा कह सकते हैं, खुदा खुदा है ऑलरेडी। ये ट्रायंगल जो दिखाया था, हम भाई एक बार फिर दिखा दें। खुदा यस्सु नहीं है, यस्सु होली स्पिरिट नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट खुदा है और फादर खुदा है और बेटा खुदा है। अगर समझ आ गई है तो जोरदार ताली इस बात के लिए हम बजाएंगे कि ये चीज जो कंफ्यूज की हुई है लोगों को, वो उसका क्लियर कट समझ आए। दूसरी बात, एवर लास्टिंग फादर, अबदियत का बाप। अभी बच्चा 700 साल बाद में पैदा होना है, उसका पहले ही नाम रख दिया है, उसका नाम अबदियत का बाप होगा, पहले ही से जो मौजूद हो। एवरलास्टिंग फादर, अबदियत का बाप यीशु मसीह खालिक के रूप में। एवरलास्टिंग फादर इन अ शेप ऑफ क्रिएटर। क्रिएटर कौन होता है? जो चीजों को क्रिएट करता है। इसलिए यीशु मसीह का बर्थडे का केक काटना रॉन्ग है। यीशु मसीह पहले से ही मौजूद है, वो तो मुजस्सम हुआ है, उस दिन पैदा नहीं हुआ। केक अपने नाम का काटे, नॉट फॉर हिम बिकॉज ही इज गॉड, और वो दुनिया के बनने से पहले। खुदाइश पहला बाब 26 में लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानत बनाए। क्या जी? हम, बाप, बेटा और पाक रूह तीनों के जो मजमुआ है उसकी बात की जा रही है। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानत बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। Then God said, let us make human being in our image. Let us. एक बंदा ये नहीं कह सकता let us, उसके साथ दूसरा भी चाहिए, उसके साथ तीसरा भी चाहिए। तीन चीजों का मजमुआ एक खुदा है। इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया है कि खुदा यीशु मसीह को जब ये नाम दिया जा रहा है कि अबदियत का बाप है, तो ये मेरे चीजों, ये दुनिया चांद सितारे बनने से पहले यीशु मसीह ऑलरेडी मौजूद था। यूहन्ना पहला बाब पहली दूसरी तीसरी आयत, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। जैसे पैसे ट्रायंगल में हमने सीखा, क्या था जी? और कलाम खुदा था। यीशु मसीह खुदा है, खुदा के साथ मजमुए में। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। मेरे चीजों, कोई भी ऐसी चीज नहीं पैदा हुई दुनिया में जिसमें एज ए क्रिएटर यीशु मसीह मौजूद ना हो। उसने तो सबको बनाया है, हम कौन होते हैं उसका हैप्पी बर्थडे गाने वाले? और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यीशु मसीह के बगैर कोई भी ऐसी चीज पैदा नहीं हुई, क्योंकि यीशु मसीह क्रिएटर, एज ए क्रिएटर दुनिया के बनने से पहले मौजूद था। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इन द बिगिनिंग द वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से मौजूद था वर्ल्ड। यीशु मसीह पहले से मौजूद हैं। बिगिनिंग the word already existed. The word was with God and
the word was God. He existed in the beginning with God. तो क्या हुआ कि जी? He existed or in the beginning already with God. God created everything through him. God created everything through him. अगर यीशु नहीं है तो क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन यीशु ने पैदा की है. God created everything through him and nothing was created except through him. एक चीज भी दुनिया की ऐसी नहीं बनी जिसमें यीशु मसीह का हाथ ना हो. हर चीज उसके वसीला से बनी है. जो दूसरा पॉइंट है वो है यीशु मसीह क्रिएटर के रूप में. और कुर्सियों पहला बाब 16वीं 17वीं आयत में, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की. जो कुछ भी आसमान पे मेरे अजीजों बना है या जमीन पे, यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं बना. देखी हो या अनदेखी, वी कैन सी और वी कैन नॉट सी. चाहे हम कुछ चीजें देख सकते हैं या नहीं. जो कुछ कईयों के बारे हमने सुना है, ये भी है वो भी है, दूसरी जगह इतने समान है, फलां, कुछ नहीं देखा. लेकिन चाहे हमने देखी है या नहीं, उसी के थ्रू, उसी के वसीला से पैदा हुई है. तख्त की हों, रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई. और वो सब चीजों से पहले है. ये कलाम में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा. और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं. He existed before anything else and he hold all creation all together. सारी क्रिएशन जो है, ये बाप और बेटे और बाप जो है, खुदा जिसे कहते हैं, उसने होल्ड करके रखी हुई है. लेकिन जब भी हमने दुआ करनी है तो बाप से करनी है. और इसीलिए कहते हैं, और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से. बाप से मांगना है यीशु मसीह के, क्योंकि ही इज द डोर, वो दरवाजा है. और यूहन्ना 8 में लिखा है 58, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं. बिफोर इब्राहिम वॉज बोर्न आई एम. अब इब्राहिम कब पैदा हुआ है? और यीशु मसीह तो उससे बाद मूसा की जमाना है, उसके बाद यीशु मसीह का है. लेकिन क्या लिखा है कलाम में कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं. और मुकाशफा में लिखा है 22 बाब में, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा इंतहा हूं. आई एम द अल्फा and the omega, the first and the last, and the beginning and the end. मैं शुरू में से हूं. पहली बात, जब खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए, और जब इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने आसमान को, जमीन को बनाया है. पानियों से जमीन को अलहदा किया है. आप देखते हैं जब हम जमीन को खोदते हैं, चाहे हम ड्राई लैंड पे हैं, जमीन खोदते हैं, नीचे पानी है. अब पानी के ऊपर जमीन कैसे रह सकती है? ये खुदा ने होल्ड करके रखा हुआ है सब कुछ. ये ऐसे नहीं है कि अगर हमारा समुंदर के किनारे पे घर होगा तो तब ही हम हलाक हो सकते हैं. मेरे अजीजों, जहां पर भी जमीन है उसके नीचे पानी है, क्योंकि खुदा ने जमीन को पानी से अलहदा किया. लेकिन जब खुदा ने जमीन को पानी से अलहदा किया है, यीशु मसीह अब्दियत का बाप ऑलरेडी वहां पे मौजूद था. जब हवाओं को बनाया है, जब परिंदों को, चरिंदों को, बूटियों को, फलों को,
ये सारी चीजें खुदा क्रिएट कर रहा है, रेंगने वाले जानवर, मछलियों को, ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। और ना सिर्फ ये, खुदा ने जब आदम को बनाया तो अब्दियत का बाप यीशु मसीह ऑलरेडी वहां पे मौजूद था, इसलिए कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। मैं और आप उसकी शक्ल पे बने हैं और हर एक इंसान कीमती है, हर एक इंसान खूबसूरत है। उस जैसा खुदा ने कोई नहीं बनाया, वो अनमोल है, उसकी कदर कीजिएगा, उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी इंसान को डिग्रेड कर सकता है, लेकिन खुदा ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है। इसलिए जब उसने क्रिएट किया है इंसान को, तो ऑलरेडी यीशु मसीह अब्दियत का बाप वहां पे मौजूद था। जोरदार ताली और ताली बजाया कर। आपको बरकत मिलती है, अपने हाथों को हिलाएं। ये मुझे प्रेज करने के लिए नहीं है, ये उसके नाम को कि मुझे कलाम से बरकत रूठ कर बैठने की जरूरत क्या है। और ना सिर्फ ये, जब उसने क्रिएट किया है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। खुदावंद यीशु मसीह अब्दियत का बाप ऑलरेडी मौजूद है। और कुर्सियों में जैसे कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के बगैर बनी हो। क्योंकि ये ट्रायंगल जो देखा है, ये खुदा है यीशु मसीह, ये ऑलरेडी दुनिया बनने से, हर चीज बनने से पहले मौजूद था। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है, एवरलास्टिंग फादर जीसस क्राइस्ट इन अ शेप ऑफ रॉक, चट्टान के रूप में। और जब बाप की बात की जाती है मेरे अज़ीज़ों, मुझे पता है कि बहुत सी चीजें मां के लिए लिखी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मां की मोहब्बत अनमोल है, फर्क है बच्चे के लिए। लेकिन इस बात को भी ना भूलिएगा कि बाप क्या कुछ नहीं अपनी औलाद के लिए करता। बाप जो ही 18 का 19 20 का हो जाता है, सुबह शाम रात दिन एक एक काम अपनी जान पे खेल के, मैं अगर मेरे पास मेरा बच्चा हो तो मुझे खुद प्यास लगी हो तो मैं शायद खुद ना पीऊं कि तू भी ले। ये कनेक्शन है जो है ना कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। जितनी हुकूमतें हैं वो एक लेवल है, उनके रूल रेगुलेशंस हैं सिटीजन्स को डील करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह को जब ये कहा गया है कि सल्तनत उसके कंधे पे होगी, तो वो एज ए बाप डील करता है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है, बाप को तरस आता है। ये तरस जो है ना, ये मां से ज्यादा बाप में डाला गया है औलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, औलाद को फीड करने के लिए, औलाद के लिए प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप रखा गया है, क्योंकि बाप में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो मदर में खुदा ने नहीं डाली, और इसलिए ये नाम उसको दिया गया। तीसरा पॉइंट, एवरलास्टिंग फादर इन अ शेप ऑफ रॉक, चट्टान की सूरत में यीशु मसीह पहले अब्दियत का बाप पैदा जो उसकी मुजस्सम हुआ है जब यीशु मसीह, उससे पहले की बात की गई है। एक्सोडस, खुरूज चैप्टर 17 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चांद को अपने साथ ले ले। चांद को, इसमें अगर कुछ बुजुर्ग हैं उसमें आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन जो है मेरे साथ जा सकता है। नॉट एवरीबॉडी। और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। ये बहरे कुलसम की बात की जा रही है। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हूरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं
चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। पहला क्रंथियों 10वां बाब 4 आयत में लिखा है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मसीह का जिक्र पुराने अहदनामा में, and that rock was Christ। टॉपिक क्या है? अबदियत का बाप। यीशु मसीह को ये नाम क्यों दिया गया? कि वो पहले ही से मौजूद था। और मरकस 12:10 में लिखा है, क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थरों को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यीशु मसीह चट्टान की सूरत में पुराने अहदनामा में जब ये बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल रही है, तो मेरे अजीजों, ये सीन के बियाबान तक जब पहुंचे हैं, सीन के बियाबान से निकल रहे हैं, तो अब क्या हुआ है कि रफदीम का इलाका है, वहां पे पहुंचे हैं और वहां पे इनको पानी नहीं मिला। लेकिन अगेन बाप तरस खाता है। बाप में तरस का जो स्पिरिट है वो फीमेल से ज्यादा है। मां बच्चे के लिए जान कुर्बान कर सकती है, लेकिन एक तरस का जो इसको डायमेंशन किया जाए तो तरस के हिसाब से बाप जो है इसमें तरस ज्यादा था। अब यहां पर ये जब सीन के बियाबान में से होकर रफदीम में पहुंचे हैं, तो वहां पर इनके लिए पानी नहीं है। और पानी नहीं है तो इसराइल कौम जो है मेरे अजीजों, ये गिला करती है मूसा पर कि तू हमें मारने के लिए इस बियाबान में ले आया है। अभी 2 माइल्स ही चले थे। ये सीन का बियाबान जो है वहां से 2 माइल्स है ओनली रफदीम, लेकिन वहां पर चूंकि पानी नहीं है तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को, हमारे जानवरों को और हमें मारने के लिए तू इस बियाबान में मूसा हमें ले आया है, हमारे लिए पानी मुहैया कर। मेरे अजीजों, खुदा के सामने मूसा अपने घुटने टेक लेता है और कहता है कि खुदा, मैं इस बियाबान में जहां पर कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, इन लोगों के लिए पानी कैसे मुहैया करूं? तो मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा, बुजुर्गों को अपने साथ ले जा और चंद बुजुर्गों को लेकर मैं हुरब की एक पहाड़ी है वहां पे खड़ा हूंगा, तूने वहां पे मारना है। चूंकि बाप और बेटा और पाखरू एक हैं, जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तो तू चट्टान पे उसी आसे को, उस छड़ी को जिससे बहरे कुलजम को तूने 2 हिस्सों में पार किया था, उसी को मारना। और मैं वहां पर अपने बेटे को, जो चट्टान है, जो यीशु मसीह है, उसको पानी की सूरत में उस चट्टान में से निकालूंगा और तुम सब उस चट्टान में से पियोगे। और फिर मेरे अजीजों, इन्होंने ऐसा किया, उसने आसा मारा है, पानी निकला है। इस्राएल कौम, उसके बच्चे, उसके जानवर, उसके बुजुर्ग, सारे लोग वहां पे पानी पिया है और खुदा का शुक्र किया, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है, इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा रखा। वो अब्द से है, वो पहले से है, इसलिए चट्टान जो है उसमें से पानी निकला है। यीशु मसीह चट्टान है, वहां से पानी निकला और सबने ये पानी पिया। इसी तरह मेरे चीजों, जब बेवा जिसका एक ही बेटा था मर जाता है, यीशु मसीह किसी और काम के लिए जा रहे थे, उसने जब उस बेवा की आवाज़ सुनी है, यीशु मसीह के दिल में पैशन, तरस आ जाता है, जनाजे को जिंदा किया। उस सामरी औरत को जो याकूब के कुएं पर आई है, यीशु मसीह को तरस आया। ये औरत, ये लड़की, ये बेटी गुमराह है। ये लड़की, ये औरत, इसको नहीं पता ये क्या कर रही है। इसको क्राइस्ट चाहिए, उसको तरस आया है, इसकी मैंने जिंदगी चेंज करनी है। और खुदा ने कहा
खुदा यीशु की बात कर रहा हूँ, खुदा बेटे की बात कर रहा हूँ। तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी। वो कहती है तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है। क्या कहा कि ये जो तू पानी ला जा रही है, इससे तू फिर प्यासी हो गई, लेकिन अगर वो पानी जो मैं तुझे पिलाऊंगा पीती, तो कभी भी प्यासी ना होगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के दिल में पैशन, तरस आ जाता है। जब भीड़ देखी, 5,000 लोग, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, यीशु के दिल में तरस आया। सारे दिन से हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। कई बार सिर्फ हम इबादत ही करना चाहते हैं, खाने को रिजेक्ट करते हैं। और कुछ हैं वो जो खाने को प्रायोरिटी देते हैं, इबादत चाहे हो या ना हो, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना जरूरी है। सारा दिन सारे लोग उसके साथ हैं, तो यीशु मसीह ने कहा गया, पैशन आया। वही बाप वाला दिल है कि ये सारे लोग सुबह से मेरे साथ हैं, इनको कुछ खाने को दो। यीशु ऐसे बाप, उसके दिल में पैशन आता है। और ये लोग, इनकी कंप्लेन क्या थी कि पता नहीं खुदा हमारे साथ है या नहीं है। इसलिए जब वहां पानी निकला तो उसका नाम मस्सा और मुरीबा रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे चट्टान, अब्दियत का बाप ऐसे चट्टान वहां पर भी मौजूद हुआ। चौथा पॉइंट जो है हमारा, एवरलास्टिंग फादर जीसस क्राइस्ट इन अ शेप ऑफ अ लैम। यीशु मसीह बर्रे के रूप में, पैदाइश बाइबा 10वीं से 13वीं आयत में लिखा, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। सबसे बेस्ट चीज, मेरी जब शादी हुई थी ना, अपनी वाइफ को बोला था कि संडे को कुछ भी हो, मुझे संडे के लिए रोकना ना, मैं मानने वाला नहीं हूं, हालात कैसे भी हो। I have to go to the church no matter what. फिर उसने कहा, इसलिए नवी नवी शादी जी अपने मसले सेटल कर लिया करो, बाद च करोगे तो लड़ाइयां होंगी ने। उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। कौन सी चीज है? एक ने बिजनेस लिया है, छुट्टी कर ली है। एक ने जॉब पे जाना है, छुट्टी कर ली है। एक के मेहमान आ गए हैं, छुट्टी कर ली है। एक ने शादी की है, छुट्टी कर ली है। यहां पे कोई छुट्टी वाला नहीं सिलसिला खुदा की हजूरी में। जो भी तेरा प्यारा है, जिससे तेरी अट्रैक्शन है, छोड़े चर्च को, छोड़े दुआ को, छोड़े कलाम पढ़ने को। ये मैं करता हूं। डोंट इवन अटेंड द फोन कॉल्स। अगर आप दुआ कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, डोंट अटेंड द फोन कॉल। इनको बाद में कॉल कीजिएगा। खुदा की रिस्पेक्ट को अव्वल दर्जा दें। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। भाईजान फोटो में थे, जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। सो ये सींग पीछे झाड़ी में अटके हुए थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering. यीशु मसीह लैम एक बर्रे के रूप में, इसीलिए उसका नाम अब्दियत का बाप रखा गया, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद था। इसलिए यशायाह नबी ने ये प्रोफेसी की है। और यहां पर लिखा है
ابراہیم جو ہے اس کا ٹیسٹ لیا گیا کہ یہ کتنا کو مجھے پیار کرتا ہے. کریں پیار بچوں کو، کریں بیوی کو، کریں پیرنٹس کو، لیکن جہاں پر خدا ہے وہاں پہ کوئی رشتہ آگے نہ آنے دیں اگر آپ خدا سے سپر نیچرل فیور لینا چاہتے ہیں. گھر میں ایک کو بخار ہے، سارے گھر والے چھٹی کی تھی. What is this؟ یہ ہے ہمارا بلیو خدا پہ. بلیو کو بڑھائیں میرے عزیزو. یہ بلیو جو ہے یہ میری اور آپ کی لائف کو چینج کرے گا، کیونکہ پھر مجھے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کچھ میرے لیے کرتا جائے گا. کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، من خود آپ کے سامنے آئے گا. مکاشفہ 13 باب میں لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے. برہ کے روپ میں یسوع مسیح ابدیت کا باپ پہلے سے موجود ہے. All the people who belongs to his word، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں جو اس کے نام کے کہلاتے ہیں اس کے لیے لکھا گیا ہے. Whose name were not written in the book of life۔ اگر وہ جس کا نام کتاب حیات میں نہ لکھا ہوا ملا اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ 666 حیوان، اینٹائی کرائسٹ، حیوان جو مسیح کے خلاف ہے اس کی پرستش کریں گے، جن کا نام برے کی کتاب میں نہیں لکھا گیا، اور یہ برہ شروع سے موجود تھا۔ اب ابراہیم کی بھی یہی سٹوری ہے کہ اس کو بیٹا ملا ہے 100 سال کے بعد۔ کتنی چیز پریشس آپ کے لیے ہوگی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے، پیپر کیے ہوئے ہیں، وائف کے، ہسبینڈ کے، پیرنٹس کے، بہن بھائیوں کے، اتنے سال رہ گئے جی، اتنے سال رہ گئے، اتنے سال رہ گئے، اور ایک ٹائم ہے جب انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے کہ جو اسپانسر لیٹر ہے وہ بھیج دو، ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ اس موقع کے لیے کتنی انتظار ہے، اور اس ابراہیم جس کو وعدے کا فرزند دیا گیا ہے، اسحاق، اس کے لیے لکھا ہے کہ تو اس کو لے اور اس کو موریا کے پہاڑ پر لے جا۔ موریا جگہ کا نام ہے، پہاڑ کا نہیں۔ وہاں پہ بہت سے پہاڑ ہیں، اور وہاں پر میں ایک پہاڑ آپ کو بتاؤں گا، اس پر اس کو قربان کرنا۔ اب یہ صبح سویرے اٹھ کر لکڑیاں چیرتا ہے، 2 جوان لیتا ہے، گدھے کے اوپر رکھتا ہے، اور یہ لکڑیاں اور ساتھ آگ لیتا ہے اور چھری لیتا ہے، اور گدھے پہ رکھی ہیں، لیکن اس پہاڑ پر جہاں پر خدا نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر رک جانا، اس سے آگے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہے، یہ دونوں جوان نہیں جا سکتے۔ ان کو ادھر ہی روکو۔ وہی لکڑیاں بیٹے پہ لاتی ہیں، اور میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ وہی لکڑی یسوع مسیح پر لاتی ہے، تاکہ قربان ہونے کے لیے اس پہاڑی پر جائے۔ یسوع مسیح کی بھی قربانی یروشلم کی پہاڑی کے اوپر ہوئی تھی، اور اس پہاڑی پر لے کر جب اوپر جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں کیا لکھا ہے؟ اس نے جو بھی دیا تھا، 100 سال کے بعد اولاد ملی ہے، اور اس کا سب سے پیارا جس میں اس کی کلے جان ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اس کو قربان کر۔ آج بھی اب ہم فیل ہوتے ہیں کیونکہ جو کچھ ہمیں پیارا ہے وہ ہم سینے سے لگانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی مر گئے تھے، وہ بھی مر گئے۔ نہیں ہو سکتا سارے بولو، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت مشکل ہے۔ اس انسان کا ٹیسٹ دیکھیے گا، ابراہیم کا کوئی چیز بھی اس کے لیے خدا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو بھی تیرا اکلوتا جو پیارا ہے، جس سے تو محبت رکھتا ہے، تو اس کو قربان کر۔ لیکن میرے عزیزو ہوتا کیا ہے کہ جو ہی خدا مہیا کرے گا، اسی لیے اس پہاڑ کا نام یہوہ یری رکھا، چونکہ جو اس کے سینگ ہیں، اس برے کے سینگ
झाड़ियों में अटके हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह को कांटों का ताज, क्योंकि वो झाड़ी जिसके कांटे उस वक्त उस बर्रे के सर में ऑलरेडी मौजूद थे, उस बर्रे को कुर्बान किया गया और कहा इस छुरी को पीछे रख दे और इस अपने बेटे को वहां से उठा। मैंने बर्रा रखा हुआ है जिसके सर पर कांटों का ताज है, जिसका सर ऑलरेडी झाड़ी में अटका हुआ है, उसको निकाल और उसको ज़बह कर। और ये वही बर्रा जिसके बारे में लिखा है अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा, जब आदम और हवा से कसूर हुआ, गुनाह हुआ, ये वही बर्रा है जिसके चमड़े से उनके कुर्ते बनाए गए। ये वही बर्रा है जो इब्राहिम के लिए यहोवा यरी उस मोरिया के पहाड़ पर मेरे अजीजों प्रोवाइड किया गया। इसलिए यीशु का नाम अब्दियत का बाप रखना, क्योंकि यीशु मसीह अज़ल से मौजूद है और वो बर्रे के रूप में उस वक्त भी मौजूद था। प्रेज़ है। आपको तरस यहां पे भी आया है ना, बेटे की जान ना लेना, तरस आया है। मैं इसके मुतबादल तेरे लिए बर्रा मुहैया करता हूं। आपका दिल तरस से भर जाता है। 5वां पॉइंट, एवरलास्टिंग फादर जीसस क्राइस्ट इन अ शेप ऑफ सन, बेटे के रूप में पुराने हदनामे में कैसे नजर आया, क्यों उसका नाम अब्दियत का बाप रखा गया। दानियल 3 चैप्टर उसकी 24-25 वर्ष में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर, सरासीमा के माने होते हैं अमेजमेंट, हैरान, हैरत अंगेज होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत, एडवाइजर जो थे उनके वहां पे अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा कि हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाह ज़ादा किसी है। चौथा 3 है, एक की शक्ल इलाहज़ादा, खुदा के बेटे जैसी है। इलाहज़ादा का मतलब है खुदा का बेटा। यहां पर जो हम स्टोरी देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और हुक्म जारी किया कि जितने भी आला दर्जों के लोग हैं, जितने भी हाकिम, नाज़िम हैं, सरदार हैं, काजी हैं, खजानची हैं, मुशीर हैं, मुफ्ती हैं, मुनसिबदार हैं, उन सब को एक ऐलान किया गया, ढोल बजाया गया, मनादी की गई कि फलां दिन इस मूर्ति को जो सूबा बाबल में नस्ब की गई है, हर शख्स ने इसको सजदा करना है। अब दुनिया का, वहां का सारे जो मोतबर लोग हैं, बड़े बड़े लोग ऑलरेडी मौजूद हैं सजदा करने के लिए मूर्ति, जो कि बादशाह का हुक्म है। कुछ चीजें जरूरी नहीं, अगर वो मेरे फेथ के खिलाफ हैं, मुझे और आपको स्टैंड लेना चाहिए। और क्या हुआ कि ये सारे लोग इकट्ठे किए हैं और वो कहा गया कि जिस वक्त करना और नए और सितार और बाब और बरबत जगाना और हर तरह के साज जब बजेंगे तो सब लोगों ने झुककर उस मूर्ति को सजदा करना है। लेकिन क्या होता है कि ये, और ना सिर्फ ये लिखा है, और सब लोग, सब उम्मतें, सब कौमें, आपका मजहब, आपका फेथ कोई भी क्यों ना हो, सजदा उस मूर्ति को करना है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। वरना यह था कि जलती बत्ती जो है उसमें डालकर आपको हलाक कर दिया जाएगा।
जब ये अनाउंसमेंट हो गई है तो सदरक मिशक अबदनगो इनको असीर करके लेकर गए थे, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पर थे तीनों, क्योंकि जब इनको परखा जाता था इनमें खुदा की रूह काम करती थी। ये भी बड़े ओहदों पे हिस्ट्री बताती है, ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन जब इन्होंने सजदा नहीं किया सदरक मिशक अबदनगो ने, तो मेरे अजीजों कंप्लेन की गई बादशाह से कि ये जो असीरी में तू नौजवान लेकर आया है इसने तेरी मूर्ति की पूजा नहीं की, इसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। उसने उनको बुलाया कि चूंकि ये फरमान जारी है और हर शख्स, हर कौम, हर लुगत, हर उम्मत, कोई भी क्यों ना हो, मूर्ति को सजदा करना जरूर है। उन्होंने कहा खुदावंद हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, अगर तू हमें जलती भट्टी में डालना चाहता है तो डाल दे, लेकिन हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं। इलाहज़ादा यीशु मसीह अब्दियत का बाप पहले से ही जब मुजस्सम हुआ है, मरियम के घर पैदा हुआ है। यीशु मसीह उस वक्त सिर्फ पैदा आया नहीं है, यीशु मसीह पहले से मौजूद है। और जब मेरे अजीजों इन्होंने फरमान जो है नहीं माना तो उनको कहा कि इसकी 7 गुना आग को और तेज कर दिया जाए। जो पहलवान थे मेरे अजीजों, जो पकड़ कर इनको भट्टी में फेंक रहे थे, शोले इस कदर तेज थे उनसे वो जलकर मर गए। लेकिन मेरे अजीजों जब उन्होंने देखा कि ये तीनों शख्स जिन्होंने अपने खुदा को पहला दर्जा दिया है, ये तीनों शख्स जिन्होंने अपने खुदा के नाम को मुबारक कहा है, जिन्होंने कहा है हमारी जिंदगी जाती है तो जाए लेकिन हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों उसी वक्त वहां पर इलाहज़ादा उनकी मदद के लिए उतर आया। इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। इलाहज़ादा वहां पे आ जाता है, उनको बचाता है, और ना सिर्फ ये देखा जाता है, उस बादशाह को बुलाया गया। उसने कहा है इनको बांधा था, ये खुले फिर रहे हैं। और चौथा यीशु मसीह का बेटा उसकी तरह लगता है, इलाहज़ादा है, ये कैसे हुआ? लेकिन जब उनको निकाला गया तो मेरे अजीजों ना बाल जले हैं ना कपड़े जले हैं, और लिखा है कि बादशाह ने कहा सदरक मिशक अबदनगो का बाप जो खुदा है वो जिंदा खुदा है, उसके खिलाफ अगर कोई बात करे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर जला दिए जाएंगे। जो अब सदरक मिशक अबदनगो जो है उसके खुदा के खिलाफ कोई भी बात करेगा। एक स्क्रोल मिला, एक पास्टर ने बताया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब इन तीनों को आग की जलती भट्टी में फेंका गया है तो खुदा ने जब्राइल से पूछा इनको बचाने के लिए, जो कि जब्राइल का काम मैसेज देना है, इज अ मैसेंजर। इसलिए मरियम के पास भी जब्राइल आया। जब्राइल ने कहा मेरे पास 2 मिनट हैं तेरे बंदों को बचाने के लिए। उसने कहा मीकाइल जो है ये फाइटर एंजल्स है जो कि बचाता है। मीकाइल ने कहा मेरे पास एक, इसीलिए कई बार होता है एक्सीडेंट होने लगा सी बस बच गए हैं, उसने अपने फरिश्ते को भेजा है। और मीकाइल ने, जब्राइल ने कहा मेरे पास 2 मिनट है जाने के लिए। ये तुमार में स्क्रोल में बात लिखी हुई प्रीचर ने बताई। और मीकाइल ने कहा मेरे पास 1 मिनट है। लेकिन जब यीशु मसीह से पूछा गया ऐ इलाहज़ादा तुझे कितना टाइम चाहिए, तो उसने क्या कहा, मैं ऑलरेडी वहां पे मौजूद हूं, क्योंकि यीशु मसीह पहले से मौजूद होते हैं, इसीलिए उसका नाम अब्दियत का बाप रखा गया। हम सॉरी पाल साहब कई बार कहते हैं अद्धे घंटे से मुका दिया कर, अगर आप बोर हैं तो मैं मुका देता, नहीं तो एक मेरा और पॉइंट है, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दिस के उसको आगे एक दूसरे ने मिलन डे ने मुंह चुमन डे ने वो तो ज्यादा टाइम मिलन चला देते हैं। 5वां 6ठा जो है आखिरी है, इन अ शेप ऑफ इमैनुअल, एवरलास्टिंग फादर
इमैनुअल के रूप में, जिसका तर्जुमा है क्या जी? खुदा हमारे, ट्रायंगल, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस में से खुदा इंसानों के साथ। इमैनुअल इन द शेप ऑफ इमैनुअल। मत्ती पहला बाब 22-23 आयत में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अगर बेटा पैदा, बच्चा पैदा होना है तो उसका नाम खुदा हमारे साथ क्यों हो सकता है? क्योंकि वो अब्दियत में पहले से मौजूद था, इसलिए उसका नाम इमैनुअल रखना। फिलिपियों 2:6-7-8 में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा की सूरत पर था, ट्रायंगल एक जैसा। फिर उसके बाद खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा कि मैं तो खुदा हूं, मुझे नीचे छोटा बनने की क्या जरूरत है। लेकिन फल हमेशा छोटे को लगता है, जो छोटा होता है, जो हम्बल होता है। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। एंड दे विल कॉल हिम इमैनुअल व्हिच मीन गॉड इज विद अस। और उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Though he was God, इसलिए यीशु मसीह को हम खुदा कहते हैं, जो कि वो पहले से ही मौजूद है, इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप रखा गया। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। He gave up his divine privilege, जो उसके पास प्रिविलेज था खुदा होने का, उसको छोड़ दिया यीशु मसीह ने और इंसानी शक्ल इख्तियार की और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। एंड ही डाइड अ क्रिमिनल डेथ ऑन द क्रॉस। एक क्रिमिनल, लानती मौत, चोर, डाकू, लूटने वाले, गुनाहगार, जिनको ये सजा मिलनी चाहिए थी, ये यीशु मसीह को मिली। और यहां पर भी बाप को दर्शाता है। आज बाप की बात इसलिए है चूंकि टॉपिक ही है अब्दियत का बाप। सो माएँ ये ना सोचे पता नहीं ये बाप जो है उनको बूस्ट कर रहा है। जो टॉपिक है ये वही होगा, चाहे माओ का है तो माओ का है, बाप का है तो बाप का। तो यहाँ पर भी बाप को दर्शाया है किस चीज पे? कि वो इंसान जिसके साथ खुदा बागे अदन में रफाकत करता है, जिसके साथ शराकत करता है, जो अच्छी जगह पे रहता था, जो उसके लिए फिरदौस था, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, खुदा की हजूरी हर वक्त मौजूद रहती थी। लेकिन ये शख्स जब इससे कुताही हुई है तो खुदा ने इनको बागे अदन से निकाल दिया और शोला जंग तलवार से अदन की जो है मेरे अजीजों ये रखवाली करना शुरू कर दी, ताकि ये इंसान जो है जिसको निकाला गया है आकर उस हयात के दरख्त से ना खा ले। क्योंकि इंतजाम ये था कि ये लोग जब उसकी हजूरी से निकल चुके हैं, आदम और हवा, उसके बाद कई जनरेशंस आई हैं, बहुत से लोग आए हैं, लेकिन ये लोग उस वक्त भी और आज भी तारीकियों का शिकार रहे हैं, आंधियों का शिकार रहे हैं, तूफानों का शिकार रहे हैं। यीशु मसीह जो कि अब्दियत का बाप है, खुदा का अरेंज था कि मुझे इस दुनिया पर इन लोगों पर तरस आता है। ये अपने आप अपनी साल्वेशन अपने आप को बचा नहीं सकते, इसलिए उसने अरेंज किया कि मैं अपने बेटे को, जिसका नाम इलाजादा है, जो राख, जो चट्टान की सूरत में, जो बल्ले की सूरत में और जो बेटे की सूरत में पहले भेजा गया है, मैं अब इसको मुकद्दसा मरियम के घर में, कुमारी मरियम के घर में भेजूंगा। वहां पर इसका जन्म होगा और वहां पर जब लोग आकर इसको देखेंगे, इमैनुअल, गॉड विद अस,
खुदा ने उसी गॉड को, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस जो ट्रायंगल है, बेटे को भेजा। खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को जो खुदा था, ताकि ये दुनिया जो अंधेरों में तरीकियों का शिकार हो चुकी है, उस पर ईमान लाकर साल्वेशन जो है यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। अगर मेरा और कोई मजहब है, अगर और कोई फेथ है, लेकिन यीशु मसीह को मैं उस तरीके से ना जानता हूँ, ना जांचता हूँ, ना पूजा करता हूँ, तो मेरे अजीजों साल्वेशन नहीं है। खुदा ने तरस खाया है, ये इंसान जो है मर जाएगा, अपने गुनाह में ये इंसान मर जाएगा, अपने कामों से ये इंसान मर जाएगा। इसको इतनी हिकमत नहीं है, इसको इतनी अकल नहीं है, इसको इतनी समझ नहीं है। मैं अपने बेटे को भेजूंगा जो इनके लिए कफारा देगा। जब वो कफारा देगा तो ये हर एक शख्स जो मेरी नजर में अनमोल है, मैं उनको फिरदौस में वापस जहां से वो निकला है वापस लेकर जाऊंगा। इसलिए उसने इमैनुअल उसका नाम रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बेशक वो खुदा की सूरत में था, खुदा था, उसने अपने लेवल को नीचे किया है, इंसानों की शक्ल इख्तियार की, ताकि मैं और आप उस साल्वेशन को, उस जन्नत से जहां से हमें धकेला गया है, दोबारा वहां पर बुलाया जाए और खुदा और उसके मुक़द्दसीन हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। क्योंकि अगर इमैनुअल ना आता तो देयर विल बी नो ग्रेस। ग्रेस क्या होती है? ग्रेस ये होती है कि जो आपने नहीं किया आपको उसका अजर दिया जाए। आप जॉब पे नहीं है लेकिन घर में आपको चेक आ जाए $500 का कि ये हम आपकी मदद करें, ये ग्रेस है। हमें कामों से खुदा तक पहुंचना था, लेकिन अगर इमैनुअल खुदा हमारे साथ, अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता तो ग्रेस नहीं होनी थी और फॉरगिवनेस, गुनाहों की माफ़ी नहीं होनी थी, और हमारे लिए ऑफर ऑफ हेवन जो फिरदौस की दावत है वो नहीं होनी। आज हम इन सारी बातों से सीखते हैं कि यीशु मसीह, जिसका नाम अब्दियत का बाप, अबद से पहले से मौजूद है, वो खालिक के रूप में मौजूद था जब सारी कायनात, क्रिएशन, हर चीज़ बनाई गई। यीशु मसीह ऑलरेडी मौजूद था, चट्टान में के रूप में, पानी के रूप में आया है। वो चट्टान है, लोगों ने पानी पिया है इसराइल कौम के लिए, वहाँ पर वो चट्टान के रूप में पहले से मौजूद था। इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप है, इसलिए उसका नाम अब्दियत का बाप है, क्योंकि वो बेटे के रूप में सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को बचाने के लिए चला गया। और वो इमैनुअल, खुदा हमारे साथ, वो इंसान की शक्ल में हमारे लेवल पर, हमारा जैसा, इसलिए वो बच्चे की सूरत में आया और इंसानों की तरह रहा, ताकि मुझे और आपको समझ आ जाए कि खुदा क्या है, ताकि वो हुजूरी जिसमें से हमें निकाला गया है हम वापस जाकर हमेशा हमेशा